Hello students, I am Sumit Sharma and will teach you computer information technology. In the last class, we have learned how to create a presentation on PowerPoint, and we have discussed about how to start PowerPoint, the PowerPoint windows के जो what are the components of PowerPoint windows, how to create a presentation from scratch, how to create a presentation using built-in templates and the layouts. That all things we have discussed in last videos, or may say in last class. And today we will learn how to add text in our slide, how to save the presentation with the password, without password, how to run a slideshow, and all things we will discuss about this. So let's start. First of all, we will learn how to add the text in MS Word. Where we want to add the text, just click and type the text, and the text will be entered. But in MS PowerPoint, if we want to insert anything like text, shape object, we have to insert the placeholder like this. This is a placeholder. Yes, this is a placeholder, and this is also a placeholder. What is a placeholder? Placeholder is a dashed bordered area in our slide. जो ये डैश्ड बॉर्डर का एरिया होता है इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं. ठीक है, जैसे ये है, ये जो प्लेस होल्डर है इसमें हमें क्या करना होता है कि टेक्स्ट हमें एंटर करना है. तो जस्ट क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर. जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका जो बॉर्डर था वो डॉटेड था, वो अब डैश्ड में कन्वर्ट हो जाता है लाइट ब्लू कलर में. ठीक है, अब हम इसमें जो भी टेक्स्ट इसमें एंटर करना चाहते हैं वो हम टेक्स्ट में इसमें एंटर कर सकते हैं. ये प्लेस होल्डर में मुझे जो भी एंटर करना है उसको मैं यहाँ पर टाइप करूंगा और वो यहाँ पर शो होता रहेगा. जैसे मुझे यहाँ पर ये टाइटल के लिए था, ये सब टाइटल के लिए, टाइटल वाले में कुछ मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अपना टाइटल जो भी मुझे लिखना है, सपोज मुझे मॉडर्न एरा लिखना है, मॉडर्न मैं एमईपीएस लिख ले रहा हूँ. एस में यहाँ पर नहीं प्रेस कर सकता क्योंकि अगर मैंने एस प्रेस किया तो मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आपको लिखना होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जो भी टाइटल इसमें डालना है या जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं. If you want to add subtitle here, just click here and type your text here, and the miniature view of this will show here. Okay, it was the topic completed, how to add text. Next is saving a presentation. Suppose we have completed our work on this slide and the presentation is completed. Later on we have to save this. So to save this presentation, just click on file tab or can say office button. Just click on this and click on save as button, save as command here, and we will find out this dialog box. This dialog box is called save as dialog box. What is save as dialog box? Just type the name here that you want to, take the name of this presentation. Type the name. Suppose we want to write the type. Okay. Later on you will see where you want to store this file. This file will be stored in document folder here in this PC. Suppose I want to change it to anywhere else,
So I will browse it from here. Suppose I will press Parashar Infotech, and this will be open here, and I want to so, where else you want to store your file, you can browse it here. I want to store it in document, and I will do it here. I can create a new folder also. Just right click and go to new folder and type the name, uh, presentation, and type as. So suppose I have written this name, and click on open. Open, and here the type name of the file is written, and just click on save button. The file has been saved. Open this file. I have documents, and in red, here you will see the file has been saved. Now if you want to save this file with a password, then what to do? Just click on save as office button, that is file tab, and click on save as command. ये ओपन हो गया. अब पासवर्ड मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ टाइप, क्योंकि मुझे ये पासवर्ड के साथ सेव करना है. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टूल्स एक ये ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जनरल ऑप्शंस में मैं क्लिक करूँगा. ये मेरे पास पासवर्ड पूछा गया है, मैं यहाँ पर इस पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ. 1 2 3 I have written. There are two types of password in this dialog box. First, password to open, and second is password to modify. What are the difference between them? That is, to open password, if we type the password here, then it will ask the password when you open the file. जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे कभी भी, तभी ये पासवर्ड मांगेगा. जब आप इसमें करेक्ट पासवर्ड देंगे तभी ये उस फाइल को ओपन करेगा. अच्छा, दूसरा जो है वो है ये, अगर मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड देता हूँ तो ये ओपन तो और यहाँ पर नहीं देता हूँ तो ये मेरे फाइल को ओपन तो कर देगा बिना पासवर्ड के. लेकिन अगर मुझे उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो जैसे ही मैं उसकी मॉडिफिकेशन के लिए क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि पासवर्ड यहाँ पर मैंने दिया है. अगर हम इसको सही पासवर्ड के साथ सेव करेंगे तो ये मेरा पासवर्ड, मतलब सॉरी, मुझे मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा, अदरवाइज ये मना कर देगा. देख लेते हैं. पासवर्ड टू ओपन मैंने यहाँ पर डाला है, ओके किया, री एंटर द पासवर्ड. अब ये मुझसे दोबारा पासवर्ड बोल रहा है कि मुझे सेम पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर दिया था, ये पासवर्ड, वही पासवर्ड मुझे यहाँ पर टाइप करना है. तब मैंने ओके किया. अगर पासवर्ड मैच करता है तो ये हट जाएगा, अदरवाइज ये मना करेगा. जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद मैंने ये सेव किया, अब मैं अगर उस फाइल को ओपन करता हूँ, स्प्रेड के अंदर थी ये वाली फाइल, अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, चलिए इट वाज ओपन्ड, अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड ले रहा है. तो मैं यहाँ पर अगर गलत पासवर्ड डाल देता हूँ तो ये कहेगा नहीं, पासवर्ड इज इनकरेक्ट. ठीक है, पासवर्ड इनकरेक्ट है. अगर मैं इसको सही पासवर्ड देता हूँ तो ही ये मुझे एंटर करने देगा. इसमें ओपन हो गई. एक चीज और है कि अगर मैं इसको डिलीट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये यूज में आ रही है. चलिए इसको मैं बाद में बता दूंगा आपको. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेविंग प्रेजेंटेशन यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन. ठीक है, अब हमने ये अपनी फाइल बनाकर तैयार कर ली है. ठीक है, अब क्या है, एक काम करते हैं, मैं इसमें नई फाइल ले लेता हूँ. हाँ जी, अब मेरे पास एक ये बनी हुई है, सपोज मैंने बना ली है. मैंने नहीं बनाई, मैंने तो एक टेम्पलेट ले लिया है इसका. ठीक है, आप बना सकते हैं.
अब मुझे इसका मेरी बनकर तैयार हो गई है, जो एडिटिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर ली है और मैंने इसको सेव भी कर दिया है। सब सेव मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको। ब्रैकेट के अंदर, टाइप के अंदर सेव कर दिया, रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो फाइल हो गई है, टाइप pw के नाम से हो गई है और एक टाइप के नाम से हो गई है। ठीक है, तो मैं टाइप पर वर्क कर रहा हूँ, जो कि मैंने एक टेम्पलेट लिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे इसको रन कराना है, मतलब इसके स्लाइड शो को रन कराना है। तो स्लाइड शो रन कराने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। देयर आर थ्री वेज टू रन अ स्लाइड शो इन आवर MS PowerPoint. First of all, just click on the slideshow tab. स्लाइड शो टैब पर हम क्लिक करेंगे एंड फाइंड आउट द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप को देखेंगे, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे ही हम इस पर किसी भी फाइल किसी भी स्लाइड पर होंगे, हम क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड थी। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए आई विल प्रेस द एंटर की और जस्ट क्लिक एनीवेयर, एंटर की। एंटर की, एंटर की। Okay, तो it is called slideshow. If I want to exit from the slideshow, just press the escape button, ESC, that is present on the left top corner of your keyboard. ESC is written on the key. It is called escape key of to exit from the स्लाइड शो। ओके, स्लाइड शो से हमें एग्जिट होना है तो हम प्रेस करेंगे एस्केप बटन। ओके, मैंने आपको एक तो बता दिया है। दूसरा, अगर मुझे स्लाइड शो रन करना है तो स्लाइड शो रन करने के लिए मेरे पास एक की होती है F5। F5 की मैं प्रेस करूंगा तो मेरा स्लाइड शो रन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने F5 की प्रेस की तो ये मेरा स्लाइड शो रन हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, वही आगे को रन करने के लिए मुझे इसको नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए मुझे इसमें प्रेस करना होता है एंटर की को। ठीक है, मैंने escape की से इसको एग्जिट कर लिया है। अब तीसरा तरीका है मेरे पास व्यू बटन्स में जाकर के। व्यू बटन्स कहाँ पर होते हैं? स्टेटस बार के पास। स्टेटस बार कहाँ है? ये है मेरा स्टेटस बार और यहाँ पर मेरे व्यू बटन्स आ रहे हैं। व्यू बटन्स में मेरे पास एक स्लाइड शो के नाम से बटन होता है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मेरा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्लाइड शो करने का तरीका। मैंने इसको सेव कर दिया है। स्लाइड शो मैंने आपको बता दिया किस तरह से रन होता है। अब आते हैं किस पर? क्लोजिंग है प्रेजेंटेशन, कि हमें प्रेजेंटेशन क्लोज करनी है। टू क्लोज अवर प्रेजेंटेशन तो हमें क्या करना होता है? मैंने आपको बताया कि ये सारी कमांड्स होती हैं आपके फाइल टैब के अंदर। ऑफिस बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये फाइल टैब ओपन होता है। इसमें कमांड होती है क्लोज। क्लोज पर आप क्लिक करेंगे और ये कोई ऑप्शन इसने नहीं दिया। अगर ये सेव्ड नहीं होती है तो ये मुझसे तीन ऑप्शन पूछती। तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ उसको, सॉरी, ओपन, ये है ओपन, मेरा टाइप के नाम से था, यस इट वाज। और मैं